हेलो एंड वेलकम, दिस इज दीपक मिश्रा एंड दिस इज अजीता झा। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक टॉपिक जो कि बहुत कॉमन है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में। दैट इज थायराइड डिसऑर्डर्स। नाम सबने सुन रखा होगा। आज हम इसके थोड़े डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है, आपको डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, क्या कर सकता है आदमी इससे बचने के लिए। अजीता जी, आप हमको बताइए कि आपके क्या विचार है थायराइड को लेके। आजकल लगभग सभी घरों में इंटरनेट की सुविधा, जो भी जिसको भी थोड़ा ज्ञान है वो उनके यहाँ इंटरनेट रहती है, वो चीज़ें इंटरनेट पे गूगल करते हैं और गूगल पे लोग अपने सिम्टम्स शेयर करते हैं और फिर उनसे रिलेटेड उनको कुछ कुछ डायग्नोसिस मिल जाते हैं। और ज़्यादातर ये होता है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले वो ऑलरेडी एक डायग्नोसिस पे आ चुके रहते हैं। और क्योंकि यहाँ तक समाज में आजकल बहुत सारे लोगों से बातें करने के बाद अब पता चल जाती है कि किस डिजीज़ के क्या सिम्टम्स हैं, तो फिर डायग्नोसिस क्लियर हो जाती है। उसके बाद लेकिन डायग्नोसिस करने के बाद जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या वो उनके लिए स्पेसिफिक है या नहीं है, ये चीज़ों को लिए जानने के लिए फिर उनको डॉक्टर के पास जानना पड़ता है कि उनसे आगे उसका क्या करेंगे। तो फिर इसी के लिए हम एक मेडिकल डॉक्टर्स हैं और इसलिए हम सोच रहे थे कि हम इसको आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन की तरह, जिसको आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, उस तरह से आपको प्रेजेंट करें। तो चलिए हम पहले ये जानते हैं कि थायराइड होती क्या है। सबको मालूम है हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, लेकिन एक ये थायराइड चीज़ क्या होती है, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सिंपल सी भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करें। Now, the thyroid gland is a small butterfly-shaped gland located in the neck under the trachea. This gland secretes thyroid hormones. Now, we will see what types of thyroid hormones are there. These can be classified mainly in two types: T4, that is the thyroxine, and T3. Now, this is a combination. One of it is inactive, that is the T4 is the inactive form and the T3 is the active form. The thyroid gland releases T4 hormone, which is converted into T3 by several cells in your body. And this T3, as I said, is the active form which does many functions. Now we will see what are the functions of thyroid hormone in general. Here, the first is a metabolic rate regulation. Now, metabolic rate means the turnover of the activities in the body. That means how much calorie does the body use from the food that you eat. How much will be used, how much will not be used, how much will be stored, how will be the glucose production. So these BMR, basal metabolic rate, is controlled by thyroid. That means that if person has hypothyroidism, that means there's a less thyroid, this basal metabolic rate will be less. That means the person, even though person will be hungry, person will be eating, but that food, that energy, that glucose, that carbohydrate will be stored in the body but not used. That means the person will feel always tired and fatigued as if he does not have any energy. But the fact is, he will be having lots of glucose in his body, but only that the glucose cannot be used. It will only be stored in the form of fat. That means the person becomes overweight, obese, but at the same time is also very weak and fatigued all the time. So this was about the basal metabolic rate. Other factors that it has is that affecting the brain development. The brain, as I have mentioned before as well, that in neurological development, thyroid is a very important thing. That means a person with low thyroid will face sluggishness or drowsiness, will not be very sharp. And the person with hyperthyroidism, that we have not talked too much in this video. This video is not about hyperthyroidism. But in hyperthyroidism, the activities are much increased. That means person cannot sleep. Person has always tachycardia, sleeplessness, restlessness. So the opposite is in the hypothyroidism. The other things that happens is as lowering of body temperature, influencing the activity of the gastrointestinal tract. That means the food digestion that I have already mentioned. Controlling the way your muscles contract. That means the way because as I said that energy is there,
but it is not the usable energy. It cannot be used. So these are the few functions of thyroid hormone. That means the underfunction of thyroid causes these problems, these symptoms. All right. So next we will see what are the causes of this hypothyroidism. What causes this deficiency of thyroid in the human body? There can be several causes. As first one, I would say, is the autoimmune disease. That means our antibodies from our body recognize the thyroid as a fremd material, a foreign material. That's why the body works against the cells of thyroid and damages it. That is the autoimmune. Our body attacks itself. Now, people with autoimmune diseases have a propensity for different autoimmune conditions. Like they might be having other autoimmune diseases as well. Now, the next we talk is congenital hypothyroidism. That means a child, an infant who had not received proper thyroid levels during the growth phase or during the infancy phase or during birth or during pregnancy because of iodine deficiency or thyroid, less thyroid levels. So such people can have congenital hypothyroidism. Medicines, certain medicines like amiodarone, lithium, several cancer medicines can prevent growth of thyroid cells. That means these medicines can cause hypothyroidism. Iodine deficiency, as I have mentioned and I will be mentioning in further parts as well, has been previously a very significant reason for hypothyroidism, causing goiter and causing cretinism in masses. But because of iodization of salt in the entire world, almost entire world, the iodine deficiency hypothyroidism has reduced to a significant level in developed countries and also to a huge level in developing countries. The next we talk about is thyroid surgery. Obviously, if thyroid is removed, then it will cause hypothyroidism. So, several times there is thyroid cancer or other nodules in the thyroid gland which have to be removed. In such operations, it can be a partial thyroidectomy. That means the thyroid is removed only partially. In such cases, partial thyroid is still there and it functions and produces thyroid so that the normal functioning can be achieved. In many cases, the complete thyroid has to be removed. In such cases, because the entire gland is missing, then all the hormones are missing, it has to be replaced with medicines. So this is about the causes of thyroidism. Moving ahead, we see symptoms of thyroidism. What are the symptoms? The basic ones we said right in the beginning, that weakness, fatigue, weight gain, those could be the symptoms, but we'll see in total how many are there and what all are there. And if you are facing one of these symptoms or several of these symptoms, you should be careful, you should be more aware, alert, and see your doctor and get your thyroid levels tested. Now, symptoms include tiredness, cold intolerance, hoarse voice. Hoarse voice means in Hindi we say bhari awaz. So if that happens, because the goiter, the thyroid gland, presses on the trachea, so that when you speak on the vocal cords, so when you speak, the voice changes. Swelling of the face, weight gain, and constipation, the reasons for which I have already mentioned. These are some symptoms. Going to the next symptoms, they are other symptoms are skin and hair changes. There is a disease called carpal tunnel syndrome. I'll make a separate video about carpal tunnel syndrome as it belongs to the part of orthopedics and neurology. I will cover that separately in a separate video. Slow heart rate, muscle cramps, difficulty in concentrations, all these factors, all the activities that should happen normally in the body are slowed down in hypothyroidism. You should understand it like that, like slowing down of the entire bodily functions. Now, moving ahead, we will see which tests will your doctor prescribe you to take for the diagnosis of hypothyroidism. First and foremost is a thyroid stimulating test. TSH test it is called. Thyroid stimulating test, it's a test for the hormone which is released from your brain and which tells the
thyroid gland to make thyroids. Now, this is thyroid TSH. That means here we have a concept of negative feedback mechanism. That means if the body is not making enough thyroid, the brain gets a signal that, okay, look, there is less thyroid. That means the brain tells the body to make more thyroid, tells the brain to make more tells the thyroid gland to make more thyroid. That this telling is in the form of TSH. That means there will be more telling, there will be more TSH in the case of hypothyroidism. And then the rest, T3, T4 are the simple ones, that they are the products. That means if they are more, then that means it is hyperthyroidism, and if they are less, that means it's a hypothyroidism situation. All right. So moving ahead from that, let us discuss about a topic about which are very significant and which is not covered very often, which is not very known among the general people who are not from non-medical backgrounds, and that is about thyroidism in for causing infertility, causing problems with pregnancy, and causing defects in the baby born to the person with less thyroid hormone levels. All right, let's move ahead. तो वैसे तो थायराइड हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो थायराइड डिफिशिएंसी देखी जाती है फीमेल्स में देखी जाती है. इट्स द रेशियो इज मच मोर इन फीमेल्स दैन इन मेल्स. सो एक वो ग्रुप हो गया. द सेकेंड ग्रुप जो बहुत सिग्निफिकेंट है, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, वो होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन. हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन में हमको पहले से ही एक स्क्रीनिंग करनी होती है कि आपका थायराइड का लेवल क्या है बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट और थिंकिंग ऑफ गेटिंग कंसीव. ऐसा होता है कि क्योंकि अगर आपका थायराइड हार्मोन लेवल में नहीं है तो फिर आपके चांस ऑफ कंसीविंग में प्रॉब्लम आ जाएगी. बिकॉज मुझे पता है बिकॉज क्यों. बिकॉज जो जैसे जिसको इंग्लिश में ओवम कहते हैं कि ना, जो गर्भाशय में जो एग्स जो निकलते हैं बिफोर कंसेप्शन, तो वो ऑल जैसे मैंने पहले ही बताया था कि थायराइड हार्मोन का काम है चीज़ों को बॉडी में करवाना. जब उसकी डिफिशिएंसी रहती है तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं. जैसे कि जो रिलीज ऑफ स्पर्म जो है, रिलीज ऑफ ओवम जो है, वो डिफिशिएंट हो जाता है, वो स्लो हो जाता है. ओवम में रिलीज नहीं होगी तब आपका कंसेप्शन कैसे होगा. तो इसीलिए सबसे पहले लेवल चेक करना जरूरी है कि आपका थायराइड लेवल नॉर्मल है कि नहीं. तो फिर आपको नॉर्मल पीरियड्स नहीं आएगी, नॉर्मल पीरियड्स नहीं आएगी तो आप कंसेप्शन नहीं होगा. और ये हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, ये बहुत बड़ा कॉज होता है इनफर्टिलिटी में. जैसे ही आप मान लीजिए, इनफर्टिलिटी मतलब जो होता है कि बच्चा ना हो पाना, ठीक है, जो कि एक सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हाँ, बहुत एक सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल में एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है हमारे यहाँ. राइट. एंड उसमें क्या होता है कि जब इनफर्टिलिटी आदमी 2-4 महीने 6 महीने ट्राई करते हैं लोग, कपल्स, एंड फिर नहीं हो रहा होता है, फिर वो परेशान हो जाते हैं, क्या करें, फिर जाते हैं डॉक्टर के पास में. तो डॉक्टर जो टेस्ट, वन ऑफ द टेस्ट जो होता है वो एक थायराइड टेस्ट होता है, जिसका ज़रूरी होता है कि अगर आप देन दैट क्लियर्स इट आउट कि ना भाई आपका थायराइड कम था, इस वजह से आपके फंक्शन नहीं हो रहे थे, आप थायराइड लीजिए एंड फंक्शन रिज्यूम हो जाएंगे. तो एक इनफर्टिलिटी का मेन कॉज होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि बहुत छोटी चीज़ है. ये नहीं है कि ये बहुत बड़ी कारण हो गई जो वो बच्चा नहीं हो सकता है. ये बहुत छोटी चीज़ है जो कि ऑलरेडी डायग्नोसिस से आदमी पता कर सकता था, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास, लोग उसके बारे में सोचते नहीं हैं. और प्रेगनेंसी के, मान लीजिए तो पहला हो गया कि ना इनफर्टिलिटी के, प्रेगनेंसी हो नहीं रही है. मान लो प्रेगनेंसी हो गया और उस वक्त हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो क्या होता है? हाँ, तब ऐसे केस में ऐसा कंडीशन है कि बच्चा को जो थायराइड की ज़रूरत होती है उसके डेवलपमेंट में, वो है उसका न्यूरल डेवलपमेंट में ज़रूरत होती है. और बच्चा लेकिन जब तक 2-3 महीने का पेट में रहता है तब तक उसको ये कैपेसिटी नहीं रहती है कि वो खुद हार्मोन प्रोड्यूस कर सके. उस वक्त उसका सारा फंक्शन माँ के फंक्शन से डिपेंडेंट होता है. और जब अगर माँ में ही अगर वो चीज़ कम हो तो फिर बच्चा का फंक्शन कैसे होगा. इसलिए वो बच्चा फिर डिफेक्ट बच्चा पैदा हो सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मैं रिसेंटली रिसर्च पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि आपको मान लीजिए फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में अगर मदर जो है उनका थायराइड डिफिशिएंसी लेवल उनके कम रह रहे हैं, या TSH के लेवल ज़्यादा हैं, T3 T4 के लेवल्स कम हैं, तो इन दैट केस बच्चे का मोटर फंक्शंस, यानी कि बॉडी का मूवमेंट फंक्शंस जो बच्चे के जन्म के बाद में वो ग्रोथ स्लो होती है. ये तब जब पहले 3 महीने कम था, लेकिन 3 महीने बाद आप टैबलेट्स लेने लगे और तब आपका नॉर्मलाइज हो गया. लेकिन जो पेशेंट्स में, जो माताओं में
थायराइड कम था लेकिन कभी डायग्नोस ही नहीं हुआ, हमेशा कभी इन्होंने दवाई ली ही नहीं, और वो पूरे टाइम प्रेगनेंसी के टाइम उनका थायराइड लेवल्स कम ही रहे, उसमें बच्चे के में मोटर डिफिशियंसी यानी कि जो मसल बिल्डिंग या ग्रोथ जो एक्टिविटी है उसकी कमी के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल डिफिशियंसी भी, इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी भी होती है कि ना बच्चे की सोचने समझने की शक्ति जो है वो भी कम होती है। और जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मदर्स हैं जो हेल्थ केयर से बहुत नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ मनी, फाइनेंशियल रीज़न हो सकती है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट, बहुत लोग दूर रहते हैं, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, विलेजेस में रहते हैं, तो बहुत ऐसे बड़े ग्रुप हैं जिसमें कि लोग जो सिटीज़ में रहते हैं उनको तो जाके लैब और हमें हर लैब करवा लेते हैं, लेकिन जो दूर रहते हैं वो नहीं करवाते, और फिर ऐसे में ऐसे बच्चा होना बहुत फ्रिक्वेंट हो जाता है। हाँ, इसमें मैं ये बताऊंगा कि मैंने पहले काम किया हुआ एज ए मेडिकल ऑफिसर महाराष्ट्र के गाँव में, तो वहाँ पे एक एंटीनेटल चेकअप्स जो होते हैं, ANC कैंप्स लगते हैं, हर महीने लगते हैं। वहाँ पे ये गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर आते हैं, उसमें लोगों को पेमेंट भी नहीं लगती है। तो आप अपने आसपास के, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये चीज़ चेक करनी है तो या तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, चेक करवाइए, या तो फिर एंटीनेटल चेकअप्स जो होते हैं उसमें आप रजिस्टर कराएंगे तो वहाँ पे डायग्नोसिस स्क्रीनिंग में ये डेफिनेटली आएगा कि जो भी प्री नेटल स्क्रीनिंग्स जो होते हैं, एंटीनेटल स्क्रीनिंग्स जो होते हैं उसमें, तो वहाँ पे सिस्टम अवेलेबल है। पहले ज़माने में होता था कि ना आप नमक जो खाते हैं, आयोडीन एक चीज़ होता है, आयोडीन एक मिनरल है जो कि डेवलपमेंट ऑफ थायराइड के लिए, उसके प्रॉपर फंक्शनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले ज़माने में मान लो 200 साल पहले नमक का आयोडाइजेशन नहीं हुआ करता था, नमक आदमी नॉर्मली ऐसे खाता था। तो जो पहाड़ एरियाज़ में रहते थे तो वहाँ पे उनके शरीर में आयोडीन की डिफिशियंसी होती है, आयोडीन डिफिशियंसी हाइपोथायराइडिज्म बोलता था उसको। तो सारे फंक्शन, सारे फीचर्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, लेकिन उसका रीज़न क्या था? नमक में आयोडीन नहीं है। इसीलिए अब आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं नमक का तो आयोडाइज्ड नमक देखते होंगे उसमें। क्यों? क्योंकि अब वो गवर्नमेंट का लॉज है, नॉर्म्स है कि ना नमक को आयोडाइज्ड करना ही पड़ेगा किसी भी कंपनी को नमक को बेचने के लिए। डायरेक्टली बिना आयोडाइज के नहीं बेच सकते, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि आदमी जब लंबे समय तक बिना आयोडीन का नमक खाता है तो थायराइड की डिफिशियंसी हो जाती है, थायराइड नहीं बन पाता है ठीक से, फिर वो गॉइटर जो होता है, घेंग जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है। छोटे बच्चों में डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। प्रेग्नेंट वुमेन में जितने सारे बातें बताई आपको, वो सारे डिफिशियंसी, सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसीलिए आयोडीन भी एक मेजर कॉज था पहले प्रॉब्लम का। अब धीरे धीरे बिकॉज सब लोग आयोडाइज नमक खाते हैं, अवेयरनेस बढ़ गई है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से बनी है दुनिया भर में, तो वो प्रॉब्लम थोड़ा कम हो गया है अभी। और इससे स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ माँ, ये सही बात है, इससे दोनों चीज में फायदा होती है। सही बात है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जैसे मैंने कहा कि हम लोग, डिजीज़ बहुत कॉमन है, इसके सिम्टम्स भी आपको पता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होती हैं फिर भी आप उस पर एक्ट नहीं करते, बिकॉज ठीक है सबको हो रहा, मुझे नहीं होगा, मुझे क्यों होगा, ऐसे नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि हमारे सोसाइटी में लोग बहुत पढ़े लिखे लोग भी बहुत हैं, लेकिन ऐसा होता है कि उनको अपनी फील्ड के बारे में बहुत नॉलेज होती है, लेकिन हेल्थ रिलेटेड चीज़ ऐसी एक अलग एस्पेक्ट हो जाती है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आदमी पढ़ के भी समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए ये जो हमारा प्रैक्टिस है, ट्रायल है कि इस कंपनी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मोर एंड मोर पीपल शुड अंडरस्टैंड, शुड बिकम मोर एंड मोर अवेयर अबाउट हेल्थ केयर एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, जिसमें आपको अगर पता ही नहीं चलेगा तो आप इसका इलाज कैसे करवाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा तो इसके बारे में आप प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे लोगे। इसीलिए अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें, आपके परिवार को दिखाएं, आपके फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स को दिखाएं, ताकि सिर्फ आप और आपका परिवार ही नहीं, आपके आसपास के सारे लोग स्वस्थ बन सके और तंदुरुस्त रह सके। एंड हेल्थ इज़, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, कि हेल्थ ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है लाइफ में। देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच यूड से कि ना मेरे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट। हेल्दी रहना जीवन में लोगों का उद्देश्य नहीं होता कि व्हाई एम आई लिविंग टू स्टे हेल्दी इन माय लाइफ, नहीं होता है। लेकिन हेल्थ के बिना दुनिया में कुछ नहीं हो सकती है। हाँ। इसीलिए स्वस्थ रहें हमेशा और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ये लेकर हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।